आफ्टरनून और जिस तादाद में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उसके लिए आप तालियां खुद के लिए तो बजा सकते हैं. That much we can do here. Because I'm promising you that you are going to have time of your life. You'll be like, भाई कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुआ, मजा आ गया है ना. सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज काफी एक्शन आपको देखने को मिलेगा. आपके फेवरेट्स यहाँ पर हैं and there is going to be a lot of conversation, there is going to be performances and much more. So Katputli Creation and Vinod Bhansali present Bhanushali presents कहाँ शुरू कहाँ खत्म. Give a round of applause. तो ट्रेलर 1 आप देख चुके हैं, ट्रेलर 2 हम आपको दिखाएंगे, गाने आप सुन चुके हैं, साक्षात दिखाएंगे, बातें भी आप सुन चुके हैं, कुछ बातें और करके जाएंगे. लेकिन सबसे पहले we have to thank and we have to credit and we have to acknowledge and give a shout out to very important people here. Let's begin with Lakshman Utekar ji, the one who brought relatable life stories to the big screen, created several box office and musical successes, and he's the creative powerhouse behind the film. Give it up for Lakshman ji. Okay, Dhwani, congratulations! Finally! Do I need to introduce Dhwani? Do I need to? No? No now? जरूरत है? नहीं है. Give it up for Dhwani! Once more. The queen of blockbuster is all set to rock and roll all over again. Ready? Excited? Okay, next. Oof, good looks. And a talent ka powerhouse presenting to you Ashim Gulati. It was his birthday, by the way, so you can wish him a happy birthday. Now, pura band kar. Come on, everyone. Happy birthday. Super cool. And now the director साहब जिनके विजन के बिना इतनी अमेजिंग फिल्म बन के तैयारी नहीं हो सकती थी. Let's give it up for Saurabh Dasgupta. They are supported by a stellar star cast और उनके बिना तो कुछ भी possible हो ही नहीं सकता. And I have to thank them and I have to take their names right from राकेश बेदी जी, सुप्रिया पिलगांवकर जी, राजेश शर्मा जी, सोनाली सचदेव जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, चित्रंजन त्रिपाठी, विक्रम कोचर, हिमांशु कोहली, विकास बड़ा. सबके लिए तालियां प्लीज. And how can not we say hello to Karishma Sharma ji? Hello. Producer Katputli Creations. Hi ma'am, welcome. आपके ही शो में आपका स्वागत है. Okay, on that note, इनके बारे में क्या कहूँ? विनोद भानुशाली जी, आपका स्वागत है आपके ही शो में. Congratulations. I am sure you must be so emotional today. And such a big day for any dad. It's such a big day. So, please say hello to everybody. Thank you so much. And Kamlesh Bhanushali ji from Bhanushali Studios. Where is he? Hi sir. Hello. Please up. Come on. They should know you're here. अरे और किसी पिक्चर में जब तक तड़कते भड़कते पंचेस, डायलॉग, धाए ना मुझे मजा कैसे आता है. ऋषि वर्मानी जी. I love the dialogue. They're crazy. I mean, trailer 1 I've seen, so trailer 2 तो हम बाद में दिखाएंगे. So that's how it is. Congratulations for this one. Sanket Shah ji, are you here? Director of photography. And Sandeep Shirodkar ji for amazing background music. Are you here? No problem, we can still clap for him. Okay, the big thing is that it's releasing on Friday 20th September and it's Cinema Lovers Day.
तो तुम सबको मैं बता दूं 99 rupees and that's the day. What a day to release a movie. What a bomb day to release a movie. Round of applause for कहाँ शुरू कहाँ खत्म. And so amazing गाने. While I was here and we were playing the music, I saw all of you doing this, and somebody was doing it. मैं तो खुद भी लगी हुई थी वहाँ पर. So we have to say a thank you to all the musical talent associated. सुनिधि चौहान जी, सचिन जिगर जी, संदीप शिरोडकर, कुमार जी, कौशल मुनीर, असीस कौर, वरुण जैन, सनी एमआर, अक्षय नाइपी सिंह, शाश्वत सिंह, विस्मय पटेल, आशीष पंडित, ध्वनि भानुशाली herself. उनकी मूवी विराट. So on that note, ट्रेलर वन देख ले एक बार. देख ले. नहीं चलाऊंगी. You have to shout. क्योंकि इसके बाद all of you, all the जनता who's here, and I know kids from colleges have come and you guys are going to watch the movie, aren't you? Yeah. So you want to make some noise too. So on the count of, are we ready for trailer one? On the count of, let's do it again. 3. Hey, 3 पहले. नहीं, 3. 2. 1 कर ले 1. कर ले. Okay, we'll do it again. Countdowns are fun, yeah. It's okay. अरे दादा हाँ, that is better one. Let's do that. Okay, on the count of 3, 2, and 1, presenting to you मैं शिक्षक के साथ साथ एक इंसान भी हूँ पापा. मजा आता है. अगर तुमने उस कन्या को ना भगाया और वो कन्या तुम्हारे साथ ना भागी है तो फिर तुम दोनों राहु केतु एक ही दिशा में क्यों भाग रहे थे भाई? मुझे ना पता पापा हम एक दिशा में क्यों भाग रहे थे. बस भाग रहे थे. once more. So cute. अच्छा, which part? Anything you जो एक कोई part बहुत अच्छा लगा? Anybody? And a word has been given to the world, I guess, and it's just amazing. Bhenchod. Kind of trip 2-3 times होते होते ना. अरे ये तो सही इजाद हो गया, innovation हो गया, ये तो super. So on that note, ट्रेलर 2 भी आज दिखेगा, इसलिए सब टिक के एकदम आराम से बैठो, पानी वानी की बोतल है, बहुत मजा आने वाला है, नाचेंगे, चिल करेंगे. So म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस अब करने वाले गाने आपने देख लिए हैं, लेकिन इससे अमेजिंग क्या हो सकता है जब आप साक्षात यहाँ बैठे हो और आपको आपके फेवरेट परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्म करके दिखाए. Isn't that cool? That's once in lifetime यार. हमारे टाइम में कुछ नहीं मिलता था देखने को. Not that I'm from 1960, but still, don't start calculating. So on that note, सबसे पहले होली सॉन्ग इज रंग उड़ाए, उसका परफॉर्मेंस होगा. एंड आई वुड वांट टू इनवाइट असीस कौर, वरुण जैन ऑन स्टेज, एंड म्यूजिक इज बाय संदीप शिरोडकर, लिरिक्स बाय कौन है सकल देखने के नाम का तो भूल गया. हाँ क्या है लाइट का. I would request Sandeep Shirodkar ji and Kumar sir to join on the stage as well, please. बोलना भूपू. Hello, how are you? लेना तो बता हमको. Hi Varun, what's up? ले ले थोड़ा. Okay, before मैं यहाँ से निकल लूँगी. इधर निकल लो. लेकिन उससे पहले I have to ask my question before I get out of this place. Your one core memory when you were doing this track. First of all, hi, how are you? यार बहुत ठंडा हाय था. How are you guys? यार म्यूजिक लॉन्च पे आए हो, थोड़ा मस्ती होनी चाहिए, धमाका होना चाहिए, फील आना चाहिए. Especially we're gonna sing the holy song, so मस्ती होनी चाहिए. Core memory for this song. I think this is my second song I've dubbed from home after delivering my baby. So I'm a new mom. मतलब ऐसे इस गाने की तो कोर मेमोरी यही होगी कि मैं गाना गाती थी और फिर बीच में स्टॉप करके बेबी के पास जाती थी, उसे चुप कर आती थी और फिर वापस इधर आती थी स्टूडियो में गाना डब करने. सो दैट इज़ वन कोर मेमोरी एंड आई हैड फन एंड माई बेबी नोज द सॉन्ग अभी से ही
and it's gonna be fun to This is watch special. him sing this song after he grown ups. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. जी, your core memory. मेरा कोर मेमोरी ऐसा था कि इस तरह का गाना मैंने फर्स्ट टाइम गाया। अभी तक मैं स्लो पेसिंग रोमांटिक सॉन्ग से आता आ रहा था, तो ये फन ट्रैक फर्स्ट टाइम मैंने गाया। तो मुझे नहीं पता था कैसा साउंड करेगा, बट अभी गाना रिलीज हो चुका है। कैसा लग रहा था आपको गाना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। But I think आप दोनों को यहाँ आना चाहिए हमारे साथ. To group on the song. Come on, give it up for Dhwani and Ashana. इधर साथ में रंग उड़ाएंगे ना. हाँ. Are you guys ready? Give it up for Kumar Bandi. So this is the gist of the song, and Kumar Paji has written the song. Give it up for Kumar Paji, please. Thank you, Paji. मजा आ रहा है? So this is just one song, guys. आगे आगे देखो होता है क्या. Amazing, Assis. Thank you so much. बहुत बना दिया, बहुत बना दिया. Thank you so much. Thank you, guys. जोरदार तालियां तभी हम जाएंगे. Thank you. Next track is Dhwani's track. It's called Sehra. Dhwani and Varun, both of them together. Thank you. We love you, Dhwani. So, Sehra is a very special track again because Sajjan Jigar and I really have a lot of love for them and they've given us this track. And Varun has sung it. I think we both have a lot of love for Sajjan Jigar. And मेरी एक actually बहुत special memory है जब वो गिटार पे बजा रहे थे गाना. I think Lakshman sir was also there, Saurabh was also there, Papa was also there. And मेरी जोर से चीख निकली. I was like, ये क्या गाना है? This is insane. And I was like, this has to be on our album. And then they agreed because I mean, it was such a beautiful song and still is, and it's touching so many hearts. And then Varun agreed to sing it. And it just comes at such a beautiful moment in our film. And थोड़ा montage में आता है, बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनिएगा जरूर.
I just feel the song is what it is. फिल्म में देखो ना और Spotify पे भी सुनना, हमारे स्ट्रीम्स बढ़ जाएंगी। वो जरूरी भी है। जरूरी है यार बढ़ने guys, चाहिए। come on. अभी नहीं, तो आपका ऑडियो खराब होगा। एंड मैं बस ये कहना चाहती थी कि ये गाना इतना ब्यूटीफुल नहीं होता अगर इसमें वरुण ने भी नहीं गाया होता और Thank you so आशिम much. भी नहीं होते, और आई जस्ट फील लाइक इट्स द सोल ऑफ आवर फिल्म, नो सर, सौरभ सर एंड लक्ष्मण सर. And I love the song and I hope you guys give it love even in our film. It's out on the 20th of September. अब मैं बहुत बोल लिया, मैं जा रही हूँ. Dhwani नहीं जा सकते. Dhwani has to be on stage because the next track is yours only. Ishq De Shot. IP Singh, Akshay Raheja, Dhwani Banishali, music by Akshay, Ati lyrics by IP Singh. Please come on stage. How are you guys doing? Make some noise! देखिए जब मैं बात करता हूँ तो ज्यादा सेंस नहीं बनती है, तो गाने पे जंप इन करते हैं फटाफट. नहीं, अब तो बिल्कुल सुनना. जैसे ही बोल दिया यहीं पे तो मजा आने वाला तो है. फिर अक्षय बात कर रहे हैं. अच्छा एक काम करते हैं, चूज अक्षय. you. Okay, share any special memory, cool memory you want to share with all your जनता out here जिनको सुन के अच्छा लगे, कुछ भी, whatever you feel like. यार हमें तो बस बहुत 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 ज्यादा मजे आए. Working with Dhwani, working with Vinod sir, it was like working with family. We were made to feel so comfortable and एक गाने से बात शुरू हुई और फिर हमने 3 गाने कर दिए पिक्चर में. तो अरे चक दे पट्टे. हमारे लिए जोरदार हो जाए. Okay, so we can hear it. इश्क दे शॉट कर ले. Go on. Shot it. Shoot it. That's it. Okay. Come on. Come on, guys, let's go. What a joy. Even on my YouTube channel when we were playing it, just Like I said, Spotify है था. You know the drill, guys. You know the drill. Spotify सुने और हमारे बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखे वहाँ पे. Yes, please. So noted, guys, noted. चले next track पर. ठीक है, बिल्कुल आपने बोल दिया. Next track is एक लड़की भीगी भागी सी. शाश्वत सिंह. उसमें मेरा कोई काम नहीं है. अक्षय, हम नाचेंगे. हाँ, माहौल बने रहना चाहिए. Give it up for Shashwat! Check.
Hey everyone, hi! What energy, man! Congratulations, congratulations, congratulations. And amazing. All of you. So good. Thanks, man. Man, you can really dance, I didn't know. Yeah, alright. Shashwat, you have to say something. Share something. Well, this was my first song with the two of them, and very kind, very easy going in the studio. So I had a great time singing a legendary song like "Ek Ladki Bhigi Bhagi Si." Yes, absolutely. That's quite a lot of. Yeah, it's a responsibility. So and he just took me through it like a breeze, you know. So it was amazing. Cheers to that. Yeah. Absolutely. So, chale, shuru kare? Yes, let's go. Okay, then. Are you guys ready for this? We have to sing this chorus together, guys. Okay? We all know this chorus. आता है chorus? आप लोग सब न्यूज़ है ना? One second, let me catch my breath. Pani. नहीं इतना नहीं ठीक है. So I'm just like this is Lakshman sir shot this and I don't think He shot this in a day. he shot this in a day and this is like the best thing that ever happened to me in my whole life. Wow. Lakshman sir. For that one. I remember asking Lakshman sir, कैसे करेंगे sir? He's like, Rajesh, हो जाएगा. तू practice कर. with everything that I've asked him about the film, I don't think anyone, apart from every person who's sitting on this row, because I kept questioning it, but that's just me. And I think each and every one person here just kept telling me the same thing. हो जाएगा. Oh. You know? And that was the start of the film. And I can't believe that it's what? कल मेरा birthday था तो मतलब आज 16th है. 4 दिन. This is the best birthday gift that I could ever ask for.
Thank you. Thank you, Lakshman sir. Thank you, Karishma ma'am. Thank you, Saurabh sir. Vinod sir. I mean, this is. I'm not going to make it boring. I don't want to give a speech, but thank you for instilling this confidence in me, which I didn't have at the time till a very few days, because I kept asking him. I was like, sir, गाना है 3 दिन rehearsal के लिए कैसे करेंगे and he just kept saying कि तू टेंशन मत ले, तू कर लेगा. And it has come out so stunning. Thank you so much. Thank you so much. We love you a lot. Okay, last but definitely not the least, the title track. कहाँ शुरू कहाँ खत्म. ध्वनि Let me tell you this. So the additional lyrics and everything else was done by Akshay and IP, and I love them for it. They've given it such a beautiful indie vibe, and then that's why we also had to have Vismay on it, who's done a killer vocal. What is up, on the guys? track. यार जोर से चिल्ला दो, मुझे लास्ट वाले रो से एक्सपेक्टेशंस हैं. Thank you so much. So, yeah, happy birthday Hashim, Thank you so much, sir. and congratulations for the movie. यार ठीक से बर्थडे हम इसके बाद कर लेंगे. हाशिम को जाने नहीं हाँ, देंगे. मेरी सक्सेस पार्टी है. सक्सेस पार्टी है. So yeah, हम गाएं? आप Are we सुनेंगे? ready for it? आपको गाना पड़ेगा वरना गाना स्टॉप हो जाएगा. Exactly. You two will know na these words. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके हम. चलिए गा लोगे ना? संभाल लेना, ठीक है? अपने लिए तालियां बजाओ एक बार जोर से.
साथ में, ठीक है? Like that, All start साथ में off. गाएगा। And everybody needs to sing with us. Come Yeah. on. 3, Okay. 2, 1. अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। Thank you so much. Thank you so much. It was a blast. Did you guys have a good time? We can't hear you. Make it louder. And to everyone, please here, come on. Thank you. And special shout out to Suniti Chauhan ma'am. Okay, Oh, yes, please. Yes, absolutely. We'll just play that song there. Can we? Can we play the The track? song is called Babu Ki Baby, and I think it's just too good. Ashley will do the hook step for you. Are we playing the track? मैं बात नहीं कर रही थी। Okay, अगर मैं आपसे पूछूं कि that one particular moment in the entire movie, जब you guys were very overwhelmed emotionally, like you felt, is this happening? Is this for real? You're, you know, kind of touchy है. Wow. Such a rock star you already are, and यहाँ से तो rock and roll, full power. Your मैं तो movement, बात करने आया था, मुझे रुला दिया है। कोई बात हुई? ये अच्छी याद है. अच्छी याद है, हाँ, बिल्कुल। these are the things जितना cherish करो उतना अच्छा. Yeah. Give Okay. it to universe. Yeah. So your question was? Your any moment which was like a touchwood moment, or I'm sure the entire movie is like that, but always पता है कई बार I from the interviews I've taken, there's always one particular moment you're like, is this real? That this just happened, you know, that surreal feeling, you're very grateful. यार जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, आई थिंक एट कहाँ शुरू किया था और इंशाल्लाह कभी खत्म ना हो ये जर्नी. तो आई फील इट्स जस्ट टेकन सो मच टू रीच. Yeah, come on guys. Done that. It's not a sob story. I don't mean to make it like that, but I just feel like it's very important that I mention this. And you know, Saurabh, when I was signing the film, Saurabh, after I signed it, Saurabh came to me and he said, I had sent you a message about 6-7 years back, and that message was somewhere lost. I could not for some reason reply to him or didn't see it. And then he said, sir, मैं ये पिक्चर तब भी आपके साथ बनाना चाहता था. और 8 साल बाद he came and he said, it's still the same and I still want to make this film with you. So I feel कहीं ना कहीं I've done something right for him to have that faith in me still, and for him to believe that I could play and be his Krish to his Meera. So that's a very, very, it's a very big deal for me, because somewhere you kind of, in your day-to-day lives, in the journey that I've been having, I think somewhere you take it, कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आप किस रीज़न से ये काम कर रहे हो और क्यों आए हो अपनी फैमिली छोड़ के. बट जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, when they have that confidence in you, it feels like you've done something right, you know. And it's just been such a beautiful journey. I wouldn't want to trade it with the world, you know. So memorable moments, I think ऐसा कुछ moment नहीं है. Every now and then I'll touch myself and I'll be like, you know, I'll pinch myself and I'm like, is this really happening? And the one good thing that I feel, one of the many good things, of course, but our preparation was very solid. Our workshops were really good. I think the moment वो काम जो जितना था वो हम कर चुके थे फिल्म से पहले.
super ready. Set. And when we came to the set, it was all fun. We were just having fun with it. And one moment I'll tell you with Dhwani, जो आपका one of the part of your questions were when Dhwani was driving in the car, and this was a chase sequence. Or I was supposed to be nervous, but I didn't have to work hard for it because Dhwani was driving the car. That is so mean. And on top of that, विनोद सर की बेटी है और जिप लगा हुआ था गाड़ी में, पीछे से लोग डंडे लेके आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी चला रही थी और आई थिंक जिस हिसाब से इसने गाड़ी चलाई है हमारी जर्नी काफी स्मूथ रही है उसके बाद। बिकॉज व्हाट हैपेंड, मेरा साइकी ऐसा चल रहा था कि पीछे एक्चुअली लोग डंडे लेके आ रहे हैं, मुझे कृष्ण को बचाना है, तो मैं that's how I was driving the way I was. But you really did a good job. I saved you, buddy. Can you see the chemistry here? Can you see it? This is what you're gonna watch in this movie. So amazing! Thank you so much, both of you. Thank you. For being straight from the heart, not hiding emotions. It's so amazing. It's so amazing to just see, people just tell what they feel and just not try to hide it. So I'm very happy. This is the opportunity to say, because here यहाँ पे जो first row पे लोग बैठे हैं, from Rishi sir to the whole row actually मेरे लिए emotions जाहिर करने का एक पहला समय है कि कितनी thankful हूँ मैं, from Lakshman sir to Karishma ma'am to Saurabh. मुझे नहीं लगता मेरी पहली पिक्चर ऐसी हो भी पाती अगर आप नहीं होते, और शायद होती भी नहीं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेरा साथ दिया, लाइक माय पेरेंट्स वुड, एंड बहुत मेरा ख्याल रखा, लाइक अ बिग ब्रदर मैन, आई लव यू अ लॉट। Okay, so shall we do the track? Yes. Are we ready? Let's bring the fun back. और it's got so much vibe, and thank you Sunny and Sunidhi ma'am for doing this for us, and Ashish Pandit sir. Amazing, thank you so much. Now इस high note से अगले high note पे चलने वाले हैं, क्योंकि सन्नाटा कीजिए, trailer 2 आने वाला है। Yes, and let's right go. now, are you ready? Okay then, फिर अंधेरा करेंगे, 3, 2, 1 करेंगे, डन है? ऐसे होएगा ही नहीं ना, 3, 2, 1 तो मेरे को करना पड़ता है। Thank you. Presenting to you for the first time, trailer number 2. अरे sound effect, तुम सबको रेडियो स्टेशन लेके चलो। Okay. उधर जाके बजाएंगे। On the count of 3, 2, 1, for the first time presenting to you the trailer number 2 of Kahan Shuru Ka। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस शादी में फूलों से ज्यादा गोलियां बरस रही तो वहां से भाग गई क्यों? से पहले पूछा नहीं। पापा को डेफिनेटली पूछना चाहिए था, है ना? नहीं।
was amazing, beautiful. So looking forward to this one. So this Friday, Friday 20th, it's releasing. It's also National Cinema Lovers Day. पता है ना? पता है ना? Thank you so much. I request all of you to join us on the stage here for a photo opportunity. We'll also have media Q&A round later. But before that, please, I request all of you to join on the stage. Thank you guys. निकल गए होंगे already. Thank you so much. Are the pictures taken? I would like to request all the singers and lyricists to please take your seats. Thank you so much. On stage. आओ कभी ध्वनि आशिफ कम सेंटर Okay, media,
द हाउस इज ओपन टू मीडिया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. आप लोगों के जहन में, दिमाग में इस समय जो भी सवाल आ रहा हो, प्लीज. एनीवन क्वेश्चन? ओके, यू कैन स्टार्ट. माइक चाहिए. हेलो, दिस साइड सर. हियर. मेरा सवाल लक्ष्मण सर से है. सर इधर. मेरा सवाल लक्ष्मण सर आपसे है. मैं लगभग विनोद सर को पिछले 20 सालों से जानता हूँ. उनकी डॉटर की डेब्यू फिल्म है. बहुत प्रेशर होगा कांधों पर. तो ये जो फिल्म की कहानी है, इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली और कितना प्रेशर था? और सबसे बड़ी बात, जो म्यूजिक है सुपर आउटस्टैंडिंग है, होना ही था. सर प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं मिली. फिल्म बनाते हैं सर, कहाँ से प्रेरणा आती है? अच्छी फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, निकल जाओ. बट सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड. 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था, आपको पता होगा. अभी भी है. वहां पे मैं कैमरा अटेंडेंट था. मेरी सैलरी थी 1500 रुपया. और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहां पे मार्केटिंग में इंटर्न था. उनकी सैलरी थी 1200 रुपया. मेरा जब ये कैमरा अटेंडेंट था तो मेरे को ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था, AJW3. जब पता चला तो वो पियून के एक लेवल ऊपर था, असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3. जहाँ पे हम सारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, वहाँ पे वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया. मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन बन गया, DOP बन गया, डायरेक्टर बन गया, फिर प्रोड्यूसर बन गया. भाई भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए. सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी, ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है, सौरभ ने डायरेक्ट की है. और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है. इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था. तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी, कुछ नहीं. सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे, मैंने उसको देखा था. उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा. कि इस कैरेक्टर को, छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं. उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में, और वो धोनी की आंखों में था. तो इस तरह से सर हम जुड़े. और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है. बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग. सीरियसली थैंक यू. हमने एक आदमी को हमारा रेडियो उसको उहू करने के पैसे दिए. वो जब से शुरू हुआ है उहू किए जा रहा है. हाँ. आपके बाएं साइड. मेरा सवाल सौरभ से है. फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा है, एकदम कंप्लीट बॉलीवुड मसाला फिल्म हमको देखने में महसूस अभी हो रहा है, अच्छा लग रहा है. इसका टाइटल कहाँ शुरू कहाँ खत्म और फिल्म की कहानी दोनों एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं? सर वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए. बट सर ये जब आया था, पहले हमने शुरू की थी लिखना, इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है. बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स रोम कॉम. इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं. तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होने वाला है, उसके थॉट से आया था. और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था. हम लोग तो बहुत बिजी थे वो सब करने में, पूरा प्रोसेस वो करने में, एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस. नहीं, आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर, सौरभ ने भी सही जवाब दिया. जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक लड़का गेट क्रैशर है. वो एक शादी का गेट क्रैश करता है, वहां पे एक लड़की को मिलता है, और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज खत्म कहाँ पे होती है. और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो हमारे राहुल नंदा सर है, ये उनके वहां से आया टाइटल है. बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है. सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल. यस. इंडस्ट्री में हमेशा बातें होती है नेपोटिज्म को लेकर, क्या वो टैग लेने के लिए आप तैयार हैं? सर मैंने अभी कहा वो नहीं आए, मैं गया था. वही सवाल तो नहीं चाहिए था, तभी तो पहले ही क्लियर किया था. जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है. आपने शुरुआत की थी कि वो अभी
लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक। तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी बच्ची थी तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल दूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई और इस फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने थिएटर्स में आप एक्सपेक्ट? मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना, जब वो आया मेरे पास में उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। म्यूजिक उसकी म्यूजिक में जो गाने हैं वास्ते ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज हैं एंड शी इज द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर, मतलब 100 करोड़ के ऊपर। तो हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज डन वेल फॉर हरसेल्फ एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता है ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग और जहाँ शो कर रही है। बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार चलो देख ये पिक्चर है भाई एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे कंधे पे, यू हैव टू डू। मैंने सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था। लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को लक्ष्मण ने कि जब तू फिल्म देखेगा ना तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की लगेगी जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर यू। And seriously from bottom of my heart I want to tell you guys कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, जरा हटके जरा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है, ये मेरा आपसे वादा है। बोलना पैसे from Dainik Bhaskar. Yeah, my question is to Dhwani. Hi Dhwani, see you. Oh hi. तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस, ये होता है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। दे ऑलवेज मेड श्योर दैट माई लाइफ इज माई डिसीजन एंड नॉट देयर्स। तो आई थिंक शायद ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग होगा? आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है। इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स it was such a collaborative effort. It was never like यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे
साथ में कोलैबोरेट करते थे और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला. तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग डील. एंड और जहाँ से और जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के थे. तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट. एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मजे आए. Shrutisana this side from Bollywood Chronicle. Can you tell me where you are? Yeah. Yes, found you. Yeah. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा. तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था. आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में. और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती. हेलो ध्वनि, आशिम योर सेंटर, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया. फिल्म देख के भी मज़ा आएगा. ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है. तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए. फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना. बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है. तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील सफोकेटिंग. तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के. बाकी एंटरटेनिंग तो है. वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एंजॉय द फिल्म, विच इज व्हाई द मैसेज इज कि एक बार पूछना जरूर चाहिए ताकि आप उसके बाद आपकी मर्जी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत जरूरी है. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन और एनीवन शुड बी आस्किंग वन अनदर. एंड उसके बाद आई थिंक एवरीबॉडी इज स्मार्ट इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस हियर. ध्वनि, आप सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं, ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं आप, पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको भी? बच्चे भाग सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी. मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया. उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा. जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी. और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा. सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो. बस एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो. मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? हेलो हाय यार मतलब इट विल बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए. इट वर्क्स ईदर वे. झूठ बोल रहा है. हेलो Yeah, Rajiv Vijayakar here. Hi sir. Congratulations Vinod ji, and we have been very old friends, and congratulations to all of you. It's looking rocking. The music especially is outstanding. And I have two questions, one for Dhwani ji and one for Lakshman ji. For Dhwani, my question is a little serious, and you have done so many videos so well that what was the difference for you in acting in the film where
The emotions are more or less the same, but it's a louder, bigger format. So that is my first question. What was the difference? Sir, huge difference. Huge. I mean, I feel like in my music videos, I just play myself and maybe different sort of emotion heightened. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him. Because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Lakshman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग है और बहुत सीखना पड़ता है। लक्ष्मण जी, my question for you is that कहाँ शुरू कहाँ खत्म seems like a perfect title. So the title came first and then the idea of recreating the classic song, or was it the other way around? The title came first and then we thought of recreating the song. And I would just like to add that we've been blessed by Lata ji's voice on our title and on the song. I think ये बहुत बड़ी बात है. It's like पता नहीं कैसे हो गया, cosmically हो गया, and हम सब thankful हैं. I am Nasi. I'm blessed. Thank you, sir. Thank you for mentioning that. Actually. Hi everyone, Palak this side from Telechakkar. Saurabh, my question is to you. कहाँ शुरू कहाँ खत्म marks your debut as a film director. How was your experience? Like what should I say? It was very good. Like overall journey कैसी रही आपकी? Overall journey बहुत अच्छी रही. I think there was a time when I used to see sir's film and just try to take notes कि ये कैसे कर रहे हैं and just learn from him. And I think I'm just ऐसे करा जैसे मैं सत्यजित रे हूँ. But yeah, I think I am just blessed to have Sir, Karishma ma'am, Vinod sir, all believing in me, and I couldn't have asked for more. Thank you. Hello guys, hi. This is Komal Vishwakarma from Peeping Moon. Hi. मेरा सवाल लक्ष्मण जी से है. लक्ष्मण जी, इस फिल्म में यहाँ हेलो हाय इस फिल्म में हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे, जैसे कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, ऑल्सो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. इतनी सारी चीज़ों को आपने एक साथ कैसे बैलेंस किया? ऑल्सो आप इसमें एक मैसेज भी दे रहे हैं. सो हाउ डिड यू बैलेंस इट ऑल टुगेदर? मैम, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सारी फिल्मों में, जैसे लुका छुपी हो, ज़रा अटके हो, मिमी हो, हर एक फिल्म में मेरा फॉर्मूला है कि लोगों को हंसाते हंसाते घर जाते हुए कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो सोचते रहेंगे थोड़ी देर, बट उनको हंसाने का प्रॉमिस अपना है. क्योंकि यहाँ किसी को सीख नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को हंसना है. कि दिन भर बाहर इतनी धूप है, इतना कुछ मजमा चल रहा है, थिएटर में आके एवरीवन वांट्स टू गेट एंटरटेन, उनको मनोरंजन करना है. तो बेसिकली इस फिल्म की प्रायोरिटी थी लोगों का मनोरंजन करना, और उसमें एक हल्का सा मैसेज विच इज रियलिटी ऑल्सो. हम शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को अनुभव नहीं करते. दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे घूंघट का पता ही नहीं होता, लेकिन 80% ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली घूंघट में है औरतें. तो फिल्म में एक डायलॉग है, हंसते हंसते डायलॉग है, कि जहाँ पर एक देश में एक औरत चांद पे झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को घूंघट हटा के चांद देखने का अधिकार भी नहीं है. तो हंसते हंसते इस तरह की चुलबुली चीजें हम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को ये बहुत पसंद आएगा. थैंक यू. हाय ध्वनि, प्रिया मिश्रा हियर फ्रॉम बजूका मीडिया. बहुत अच्छा ट्रेलर था, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 बहुत अच्छा लगा हमें देख के, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो? आप अपने पिता के जस्ट बाजू में खड़े हो, मुझे जानना है क्या फील कर रहे हो, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कुछ उन्होंने सिखाया इस फिल्म के पहले आपको? उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई है मैम. I mean, मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया. उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक
बहुत समय निकल जाएगा। पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की और शायद आपको दिख रही है, आपने कहा आपको टेलर अच्छा लगा। तो एज ए फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। विनोद सर, हाउ डिड यू सपोर्ट हर? एक उन्होंने पहले सिंगिंग किया, अब एक्टिंग कर रही हैं, किस तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया? एक्चुअली क्या है ना, नहीं जब ये पैदा हुई थी ना तो तब से एक वादा था, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द हैप्पीनेस। जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने मैं वादा किया था। आई थिंक वही ये फैमिली के हिसाब से भी देखा जाता है, एंड दे डिड लॉट फॉर मी। मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल। हम लोग कोई ऐसे कुछ बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, पर आई नो व्हाट माई मॉम एंड डैड डिड फॉर मी। और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए, उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई डू माई 100% बेस्ट। एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया। मतलब इट्स नॉट इजी टू रीच एवरी पोजीशन, चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो। मतलब ओबीडियंट बेटी एंड एक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई ऑलवेज सी इन दैट। नहीं करना चाहते थे, सॉरी। मैं कहीं बैठ One last question, please. Hello, hi Dhwani. You're. Yes, hi. I'm Pragya from Hotfly. Hi. So you have a monologue in this film. Yes, I do. Please tell us something about the prep that went behind the whole monologue. That's the kind of prep. मैं उसको अभी अपने सपने में भी बोलना शुरू कर दिया है। इतनी बार आई थिंक वो मोनोलॉग किया होगा मैंने, और मुझे क्योंकि डर लग रहा था, इतनी सारी लाइंस मैंने कलेक्टिवली कभी नहीं बोली। तो और एक्चुअली पूरी पिक्चर में बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन माई टोज ना, बिकॉज यार दिखता है ना। और सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम कुछ भी पहन लो, कैसा भी मेकअप हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत भद्दा लग सकता है। तो बहुत ये सही बात है, और इसलिए मेरे दिमाग में वो बात छप गई। एंड मैंने सौरभ के साथ भी बहुत बार वो मोनोलॉग किया, हमारे वर्कशॉप में भी मैंने उसको तोड़ तोड़ के किया। और 1-2 दिन पहले आई थिंक आश्रम और मैं, हम वो लॉन में वॉक कर रहे थे, और ही वॉज टेलिंग मी आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग इट विद हिम ऑल्सो, क्योंकि तब तक हम उस मुकाम ऑफ द रिलेशनशिप तक पहुंच गए थे जब आई कुड शेयर किया ग्रो, बिकॉज ही इज ऑल्सो माई सीनियर। तो नो, ही इज, and I mean it, and I say it with a lot of love, that he's been it's been a beautiful co-star, and I couldn't have asked for a better hero. And I'm मोनोलॉग की जब बात करें तो बहुत मेहनत गई उसमें, और आई होप वो ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे। सर बताइए ना जरा। We look forward to seeing it more now. I mean, we look forward to seeing it more after what you just said. So, congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you. National Cinema Lovers Day it is, and a big shout out to music label Saregama for amazing set of music, like always. Team Saregama. Thank you so much. Have a good day. अरे तुम लोग बैठे कर रहे हैं, बैठ बैठे। मोबाइल मैडम रुको।
पहले